वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं साथियों, आज आप सबका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के राज्य स्तरीय आयोजन में मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम वर्ष 2008 से निरंतर मना रहे हैं। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है कोरोना के मद्देनजर हैंड हाइजीन फॉर ऑल। हाथ धोने, बार बार हाथ धोने और साबुन से हाथ धोने की आदत से न सिर्फ हम संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में बचाव की जो रणनीति कारगर साबित हुई है, उसमें भी हमने देखा कि मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोने की अहम भूमिका रही। कोरोना संकट के काल में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिसेफ के तत्वाधान में और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में विभिन्न आमुखीकरण और बैठकों का आयोजन किया गया है और हाथ धुलाई के प्रति जागरूकता के साथ आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कुशल नेतृत्व में पूरा प्रदेश 2 अक्टूबर से कोरोना महामारी के विरुद्ध जन जागरण और जन आंदोलन की राह पर चल रहा है। उसी दिशा का अनुसरण करते हुए विभाग अगले 2 महीने के लिए बार बार हाथ धोने सहित अन्य मुख्य सूत्रों जैसे नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अलग जगाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और फील्ड स्तर के अधिकारियों से सक्रिय सहभागिता और सहयोग की अपील करता है। मैं आज हमारे बीच में यूनिसेफ की राज्य इकाई की मुखिया हैं मैडम इजाबेल वाल्दिम और उनकी टीम के साथी हैं ऋषभ हेमानी। आपसे मेरा आग्रह है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर जो इस वर्ष की थीम रखी गई है उस पर अपने ओपनिंग रिमार्क के साथ साथ एक छोटा प्रेजेंटेशन सबके सामने रखें। धन्यवाद। Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Ministers, Chief Secretary, senior government officials and participants virtually connected across the state. It is a real pleasure for UNICEF to be associated with the government of Rajasthan celebration of the Global Hand Washing Day 2020. This year's celebrations are taking place at a time when the world is facing a pandemic that has reinforced the need to expand and sustain the practice of hand washing with soap. Hand washing with soap has re-emerged as one of the most cost-effective public health measures. Together with wearing a mask and keeping a physical distance, frequent hand washing with soap is one of the top 3 preventive practices against COVID-19. UNICEF stands in solidarity and support to the massive efforts made by the government of Rajasthan to mitigate the impact of COVID-19 on the state population, especially on the most vulnerable ones and, of course, on the children. We acknowledge the strong measures taken by the government to mitigate the health impact and save lives, as well as reducing the socio-economic impact of the disease with measures such as expanding the scope of food entitlement to urban poor and other vulnerable populations. We also recognize the effort made to combat stigma and discrimination against people suffering from the disease. Coming back to today's theme, reiterating the essential message to all segments of the societies is as important as modeling those practices in public and private space. Besides, ensuring equitable access to water, especially for people living in remote locations in Rajasthan, would be key to expand the reach of hand washing practices and leave no one behind. Over the last few years, Rajasthan has made a consistent progress in relation to household sanitation coverage, improvement in water and sanitation facilities in school and health centers. We would like to appeal
for accelerating efforts to ensure functional hand washing facility with availability of soup and water connectivity in all Agawadi centers, school and healthcare facilities in the next 3 months through the existing flagship programs and GPDP funds. It will also be important that water and soap is available in all public and private workplaces to enable the workforce to practice this key protective measure. In the name of UNICEF, I would like to reiterate our commitment to support the government effort in improving the lives of all Rajasthani children, boys and girls. And I would like to request my colleague to make a small presentation in Hindi. Thank you, Isabel. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सभागार में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, जन समुदाय के लोग और साथियों, विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पे आप सबको हार्दिक बधाई। विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2008 से निरंतर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हर साल एक नए थीम के साथ वो मनाया जा रहा है। इस साल कोविड-19 के मद्देनजर उसका फोकस रहा है हैंड हाइजीन फॉर ऑल और इसमें नेक्स्ट प्लीज। यूनिसेफ और WHO के साझा प्रयत्न से पूरे विश्व का एक ग्लोबल रोड मैप 2020 की एक शुरुआत हुई है, जिसमें सारे देश और प्रदेश इसमें जुड़े हैं और इसमें मेन इसका जो मुख्य फोकस है कि हैंड वॉशिंग विद सोप, साबुन से हाथ धोना एक बहुत ही आसान, प्रभावी और एक सस्ता तरीका है जिससे हम अपने आप की सुरक्षा बहुत सारे संक्रमण और बीमारियों से पा सकते हैं। और इसके लिए एक साझा प्रयत्न, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच और एक कन्वर्जेंस अप्रोच से सबको मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। कोविड-19 बहुत बड़ी चुनौतियां लेके आया है, पर उसके साथ साथ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो उभर के आया है कि जो 3 मुख्य असरकारक उपाय है उसमें मास्क का पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और तीसरा जो है वो साबुन से हाथ धुलाई। और अभी तक जो ये मैसेज दिया जाता था वो सिर्फ खाना खाने से पहले और शौच क्रिया के बाद, पर कोविड ने ये भी सिखाया कि साबुन से हाथ धुलाई बहुत सारे समय पे हमें निरंतर करते रहना होगा, उसका सही तरीके से करना होगा और ये हमें संक्रमण से बचाने में मदद करेगा। बहुत बार ये पाया गया है कि हाथ धुलाई की जो सही पद्धति या तरीका अगर हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो हमारे हाथ में कीटाणु रह जाते हैं। तो ये जो स्लाइड है वो दिखा रहा है कि कौन कौन से भाग जो है हाथ के जो छूट जाते हैं और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम कम से कम 20 सेकेंड तक पूरे अच्छी तरह से हाथ को धोएं और ये हमें दस्त, डायरिया जैसी बीमारियों में काफी कमी लाने में मदद करती है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डिजीजेस के में भी कमी लाती है। नेक्स्ट। हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के संबंधित कुछ ग्लोबल आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिसमें आज की तारीख में भी दुनिया के करीब 60% आबादी के पास हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है और हम कुछ राजस्थान के भी आंकड़े आगे जाके देखेंगे। और कोविड-19 के समय पे जब सार्वजनिक स्थलों पर कुछ सर्वे किए गए तो ये पाया गया कि उसकी कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र ने बहुत आगे चल के इसमें काम किया है और इसमें करीब ग्लोबली 68% केंद्रों में क्रियाशील फंक्शनल हाथ धोने की सुविधा माने पानी और साबुन या तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की उपलब्धता पाई गई है। स्कूल की बात करें, स्कूल रीओपनिंग की बातें अभी चल रही है, उसके ऊपर काफी मंथन चल रहा है, सरकार और सब लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। विश्व के कुल 53% स्कूल के छात्रों आज भी
बेसिक वाटर और सैनिटेशन, पानी और स्वच्छता के संबंधित सुविधा प्रदान हुई है और बाकी छूटे हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो ग्राफ है वो एक ग्रामीण राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार और धारणा का एक सर्वे यूनिसेफ ने सजग पहल के प्लेटफॉर्म से किया था। करीब 2000 लोगों का सर्वे हुआ था। ये कोविड की शुरुआत में मई और जून के महीने में ये सर्वे हुआ था। इसमें ये पाया गया कि हमारी जो समुदाय की कोरोना महामारी के जोखिम के प्रति संभावनाएं है उसके बारे में क्या धारणाएं है। तो करीब करीब 60% लोग ऐसा मानते हैं, बहुत ही कम जानकारी जागरूक थे और इसीलिए जो जागरूकता के जो कैंपेन्स चले हैं राजस्थान में उसका एक अहम स्थान है। इसमें जो हैंड वॉशिंग का अगर हम देखें तो जो आंकड़ा है वो करीब करीब 3 में से 1 व्यक्ति ही सिर्फ हाथ धोने के सही तरीके और हाथ धोने की सही विधि से परिचित है। नेक्स्ट। ये कुछ राजस्थान के आंकड़े हैं हमारे स्कूलों के, आंगनवाड़ी के और स्वास्थ्य सुविधाओं के, जो हमारे जो रिसेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल थे उससे लिए गए हैं। और मैं काफी खुशी और गर्व से कह सकता हूँ कि राजस्थान ने काफी प्रगति करी है। अगर हम स्कूल की बात करें तो 98% जो शौचालय है वो कार्यशील है। हाथ धोने की इकाई अभी 78% में है और 94% जो है उसमें पेयजल की सुविधा है। हम जब ये बात करते हैं तो इसमें हमें जो हमारे सबसे रिमोट जो दूर के इलाके हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और वहां पे जो उनको दिक्कत आती है, चाहे वो पानी की समस्या हो चाहे रीच की समस्या हो, तो उसमें कैसे हम आखिरी छोर को पहुंच पाए। आंगनवाड़ी, जैसे इजाबेल जी ने भी बताया था कि उसमें कुछ हमें और काम करने की आवश्यकता है और जो अभी न्यूट्रिशन मिशन और हम जो स्टेट एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं उसमें जो वाटर एंड सैनिटेशन की सुविधा है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, वो हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें। और हेल्थ की अगर बात करें तो कायाकल्प का जो एक बेंचमार्किंग जो काफी सालों से चल रहा है उसमें जो पिछले साल का जो रिपोर्ट है 2019-2020 जिसमें बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पीएचसी सीएचसी लेवल तक इसमें काफी बेंचमार्किंग और इसमें 70% से ज्यादा उनको स्कोरिंग मिली है। तो ये एक हमारे लिए प्रेरणादायी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोविड-19 को रोकने के लिए राजस्थान ने एक बहुत सक्रिय भूमिका करी है, जिसमें मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहला जो हुआ है वो राज्य सरकार की जो सक्रिय भूमिका के कारण जो हमारा रिकवरी रेट है वो 90% से ज्यादा हो गया है और इसमें 2 तरफा है, मेडिकल साइड और इसमें जो एक सोशल और बिहेवियर चेंज का जो विषय है उसको काफी अच्छे से आगे तक लेके गए हैं। अनलॉक का जब चरण शुरू हुआ तो सर आपकी अध्यक्षता में जागरूकता का एक जो मुहिम और कैंपेन चला था जून जुलाई में, उसकी बहुत अच्छी व्यापक पहुंच हुई थी। करीब 17.5 लाख लोग पंचायती राज डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेन हुए थे। और जब आज हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग के विषय पे बात कर रहे हैं तो हमने फेस नो मास्क का जो कैंपेन शुरू किया है और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम जो बात कर रहे हैं उसमें अगर हम तीसरा घटक साबुन से हाथ धोने का अगर जोड़े तो हमारा ये जो कोविड के सामने की जो लड़ाई है उसको हमें और बल मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। आखिरी छोर की मैंने बात करी और इसी के साथ मैं समापन की तरफ आगे बढ़ूंगा इस प्रेजेंटेशन का। यूनिसेफ ने एक बाड़मेर और जैसलमेर में पीने के पानी को लेकर एक स्टडी करी थी 2019-2020 में, जो ऐसा इलाका जहाँ पे कम पानी उपलब्ध है और रेगिस्तान प्रदेश, वहां पे अंतिम छोर तक पहुंचने की जो एक कोशिश है, कैसे हम आखिरी छोर तक पहुंच पाए। क्योंकि जब हम हाथ धोने की बात करते हैं साबुन से तो एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है कि पानी की उपलब्धता नहीं है तो कैसे हम धोए। पर उसके लिए हमने फील्ड से जब चर्चा करी तो ये आया कि हाथ धोने के लिए करीब 5 का परिवार है, 5 सदस्य का, तो एक बाल्टी से कम पानी एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जो मेरे ख्याल से हर एक घर में उतना एडिशनल वाटर संभव है उसका प्रावधान करना।
हमने ये भी पाया कि जहां जहां पे टंके बने हैं, जहां जहां पे घर में पानी की उपलब्धता रही है, वहां पे उनकी जो बिहेवियर और हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की जो बिहेवियर है, उसमें काफी इजाफा और काफी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और कोविड-19 और स्वच्छता के जो प्रोटोकॉल के साथ अब स्कूल और आंगनवाड़ियों में हमने डिटेल कैलकुलेशन किए थे सर, जिसमें हमने ये पाया कि करीब करीब जब स्कूल्स खुलेंगे तो हर एक स्कूल की जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी सैनिटाइजेशन को लेके, हाथ धोने की व्यवस्था से लेके, उसमें 78 to 100% तक इसमें वृद्धि हमने पाई थी। जो हमने एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसकी गाइडलाइंस को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसके लिए सतरंग धनक 7 उसके घटक अलग अलग निकाले थे कि कैसे स्कूल में ये कार्यान्वित होगा। और इसमें न सिर्फ जो हमारे ऑफिसर्स है, बट टीचर्स, बच्चे भी उसमें शामिल हो, और हमारे जो पंचायत के सदस्य वो भी इसमें जुड़ सके, पेरेंट्स टीचर्स ग्रुप में इसमें जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी अनुभव रहा, और उसमें हैंड वॉशिंग विद सोप एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट था। नेक्स्ट, आखिरी में मैंने प्रेजेंटेशन के अंत में 2-3 चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये जो एक हमारी ग्लोबल कमिटमेंट है हैंड वॉशिंग विद सोप की, उसको हम अगले कुछ दिनों में, जैसे इजाबेल जी ने भी बताया कि स्कूलों में, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर पानी और साबुन की उपलब्धता को प्राधान्य दे, तो जो रीओपनिंग होगी वो एक जो हमारे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे उनके लिए एक बहुत अच्छी भेंट सौगात के रूप में वो आएगी। दूसरा, कोविड-19 के चलते हमने मास्क के बारे में बात करी है, 2 गज की दूरी के बारे में बात करी है, साथ साथ अगर हम साबुन से हाथ धोने के महत्व के व्यवहार में भी अगर हम डालें तो ये काफी उपयोगी रहेगा। और ये एक प्रयत्न है जिसमें हम सबको जुड़ना होगा, न सिर्फ हमारे फील्ड के लोग, पर हम हमारे अपने दायरे में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं, तो उससे हमको काफी लाभ मिलेगा। आखिरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि हमने जो ये स्टडी करी थी बाड़मेर में और जैसलमेर में, तब हमने ये पाया कि महिला की जहाँ पे भागीदारी थी घर के जो पानी के डिसीजंस में, वहां पे हमने पाया कि जो उनके घर की वाटर सिक्योरिटी और पूरे जो ग्राम पंचायत की जो वाटर सिक्योरिटी, उसमें काफी अच्छा हमको मैनेजमेंट या प्रबंधन पाया गया था। तो ये अगर हम अभी जब आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी खास तौर से जोड़े। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम इजाबेल और ऋषभ आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर रघु शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना संबोधन दें। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री सम्माननीय सुभाष गर्ग जी, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय राजीव स्वरूप साहब, श्री वैभव गलारिया जी, कृष्णकांत पाठक जी, भवानी सिंह देथा जी, मंजू राजपाल जी, सिद्धार्थ महाजन जी, सुचि त्यागी जी, विश्वमोहन शर्मा जी, यूनिसेफ की जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है श्रीमती इजाबेल भारदम जी, उनके साथ स्वच्छता विशेषज्ञ ऋषभ हेमानी जी, इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी जिला के जिलाधीश महोदय, सारे सरपंच साहिबान, वार्ड मेंबर, प्रदेश, जिला, ब्लॉक और पंचायत के तमाम अधिकारीगण, हमें खुशी है कि 15 अक्टूबर 2020 का दिन, वैसे तो पूरी दुनिया 2008 से इसे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाती आ रही है, लेकिन ये जो पखवाड़ा आप लोगों ने हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ यूनिसेफ में मिलके और ये पखवाड़ा मनाने का जो समय अभी चुना है, क्योंकि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और जिस ढंग से अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है, कोई दवा बनी नहीं है, अभी जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जून के महीने में और जुलाई के महीने में
हमने जन जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया था, उसके बावजूद भी अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, 4 लगातार छूट देने की वजह से पॉजिटिव केसेस की संख्या पूरे कंट्री में बढ़ी और राजस्थान में भी उसका असर करीब 2000-2100 पॉजिटिव केसेस पर डे आने लगे। पहले हमने जन जागरण का अभियान चलाया। 11 जहां जिले हमारे बहुत ज्यादा संक्रमित व्यक्ति जहां आ रहे थे, वहां धारा 144 भी लगाई, लेकिन बहुत ज्यादा असर आया नहीं। और इसीलिए 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में 4 प्रमुख बिंदुओं को लेके और कोरोना के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। और उसके प्रमुख बिंदु यही थे कि बार बार साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, समूह में एकत्रित नहीं होना है, सार्वजनिक जगह पे थूकना नहीं है। ये सारी चीजें हैं। अभी जैसा आंकड़े अभी आपने बताए, वैसे तो ये सच्चाई है कि राजस्थान भूभाग की दृष्टिकोण से हमारे पास 10% भूभाग है पूरे दुनिया देश का, लेकिन पानी की जो उपलब्धता है वो 1% है राजस्थान के पास। उन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद हमें ये जागरूकता का संदेश तो राजस्थान में देना ही है, क्योंकि ये तो महामारी का दौर है कोविड का। लेकिन बाकी भी जिस तरह आंकड़े आपने रखे, चाहे दस्त जैसी बीमारी हो, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो कोई, चाहे सिलोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, इबोला हो, कोलेरा हो, जो घातक बीमारियां हैं, हाथ धोने की आदत डालने से उनसे बचा जा सकता है। हम जब भी शौचालय में जाएं, हाथ वापस धोएं, खाना खाने से पहले या बनाने से पहले। ये अगर हमारा आदत का हिस्सा बनेगा तो निश्चित रूप से न केवल इस महामारी से हम अपने आप को बचा पाएंगे, बल्कि अनेक प्रकार की संक्रमित बीमारियां जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उनसे हम बचत कर सकते हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस से जिस ढंग से करीब, जैसे मुझे बताया गया कि 50,000 लोग जुड़े हैं करीब करीब, तो ये मास अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा आयोजन है। जब दुनिया में मान लिया गया कि हाथ धोना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है और इस महामारी में तो ज्यादा ही रिलेवेंट है, तो हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाना चाहिए। और एक तरह से कोरिलेशन ही, एक तरह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई, उसमें हाथ धोना भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने भी ये कार्यक्रम दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम की, इस अभियान की सफलता को हम सब लोगों को मिलकर सुनिश्चित करना है। हमारी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये बात इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य का चिकित्सा मंत्री होने के नाते मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये सिर्फ सरकार के जो प्रयास हैं, ये आपकी जिंदगी बचाने के लिए है। अगर आप गंभीरता नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से न तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे और न राजस्थान में चाहे महामारी का प्रकोप हो जिसको हम कम करने में लगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने नहीं रखी है। 2 मार्च को जब पहला पॉजिटिव केस आया, राजस्थान में तो टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं, हमको पूना की वायरोलॉजी लैब में हमारे सैंपल भेजने पड़े। आज ये 7 महीने का सफर है। राजस्थान में हमने 51,640 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी स्थापित की है। 38 जगह पे हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर चुके हैं। अमेरिका से 13 करोड़ की 2 मशीनें, कोबोस मशीनें मंगाई हमने, 1 आ चुकी है और वो शुरू होने वाली है। जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, राजस्थान में आज ना वेंटिलेटर की कमी है, ना आईसीयू बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी है। हर दृष्टिकोण से करीब 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की है मुख्यमंत्री जी ने और 250 रिव्यू मीटिंग्स हुई है और हर रिव्यू मीटिंग में कोई न कोई नया फैसला राजस्थान की जनता को बचाने के लिए किया गया है। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें संकल्प लेना है कि हमें हाथ धोने की आदत अपने जीवन में डालनी है और अपने आप को बचाना है
अपने गांव को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वो अपना प्रेरक उद्बोधन दें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी साहब राजीव स्वरूप जी, वैभव गलेरिया जी, मंजू राजपाल जी, कृष्णकांत पाठक जी, भवानी सिंह देता जी, सिद्धार्थ महाजन जी, अन्य उपस्थित अधिकारीगण और यूनिसेफ के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती राजल बर्डन, इजाबेल बारदान, विश्व मोहन शर्मा जी, डायरेक्टर SBM, ऋषभ हिमानी जी, स्पेशलिस्ट वाटर एंड क्लीनलीनेस, अखिल अरोड़ा जी और भंवर सिंह पाटिल जी बैठे, हमारे मंत्री भी और जो भी लोग जुड़े हैं हमारे साथी और तमाम अधिकारीगण। मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टर, CO और DLOs, ग्रामीण विकास पंचायत राज के ब्लॉक स्तर पर सब साथी जुड़े हुए अधिकारीगण, पंचायत लेवल के तमाम अधिकारीगण, ग्राम पंचायत स्तर पर भी ई मित्र प्लस के साथ में सरपंचगण, वार्ड पंचगण, ग्रामीण विकास अधिकारी और एम्प्लॉय ऑफ ग्रामीण विकास पंचायत राज, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहयोगी, स्वच्छता गृही, आशा वर्कर्स, सभी लोग जुड़े हुए। तो मंत्री जी ने जो बातें कही और जो यूनिसेफ के हमारे साथियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया और जो एक मैसेज दिया, ये पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, गांव वासियों के लिए एक प्रकार नए रूप में मैसेज है, क्योंकि कोरोना आ गया है। अगर कोरोना नहीं आता तो आप हम लोग सब सदियों से हाथ भी धोते हैं, मुंह भी धोते रहते हैं, कहीं कहीं थूकते भी हैं सार्वजनिक स्थलों पर, सब करते रहते हैं और कोई रोकने वाला होता भी नहीं है, क्योंकि सदियों से वो संस्कार चले आते हैं। पर कई बार कोई चुनौती आती, चुनौती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे अभी आया कोरोना का चैलेंज आया है, जिसके बारे में मंत्री ने विस्तार से बताया किस प्रकार हमने तैयारी कर रखी है। चैलेंज जब आते हैं तो उसको चैलेंज में हम लोग कैसे कोरोना पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, एक तो उद्देश्य ये हो जिससे कि लोगों की जीवन बच जाए, एक व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो। जो हमारा टारगेट लेके हम चल रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तमाम व्यवस्था करने की मेडिकल साइट से सारे सुविधाएं राजस्थान में अवेलेबल है, जांच की भी, इलाज की भी, दवाएं फ्री कर रखी जाए। 40,000 के इंजेक्शन वो भी फ्री कर रखे हैं, 10,000 के इंजेक्शन वो फ्री कर रखे हैं, CT स्कैन फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा सरकारी अस्पताल के अंदर। तो सब कुछ करने के बाद में भी हम लोग जो देख रहे हैं देश में, दुनिया के अंदर संख्या बढ़ती जा रही है और लोग कहते हैं आने वाले वक्त में नवंबर में संख्या बढ़ सकती है, एक साथ ही कई गुना बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या होगा कोई नहीं कह सकते। प्रिडिक्शन इस प्रकार डॉक्टरों के, एक्सपर्ट के आ रहे हैं, सर्दियों के साथ में संख्या बढ़ सकती है, कोई के 2 महीने 3 महीने बाद ठीक होगा, कोई के शाम पर और चलेगा। ये तमाम बातें जो आप लोग पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, वो बातें सबके पास में है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दुनिया के अंदर, डॉक्टर समेत, जो ये कहे ये दवा जो है ये कोरोना के लिए दवा है। खाली प्रयोग हो रहे हैं और इसमें कोई दोहराने नहीं। राजस्थान में वो राज्य है देश के अंदर जिसे सबसे अच्छे प्रयोग करके दवाएं सेट की है, उसको कई राज्य अपना रहे हैं। बल्कि कहना चाहिए कि दवाएं ऐसी थी शुरू में मार्च अप्रैल मई में कि दुनिया के मुल्कों ने भी राजस्थान की तरफ देखा और प्रयोग किए। जो टैबलेट हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब मांग रहे थे इंडिया से, वो भी सबसे पहले उपयोग किया गया तो राजस्थान के SMS में किया गया। तो हमारे यहाँ के राजस्थान के डॉक्टरों ने, हेल्थ वॉरियर्स ने
और वहां कोई भी किसी तरह का था, चाहे पुलिस प्रशासन में या सिविल प्रशासन में, टीचर हो, आशा सहयोगी हो, जो मैं नाम कह लूं, आप सभी थे उसमें। आंगनबाड़ी वर्कर भी है, सरकारी कर्मचारी भी हैं, सब कुछ किया गया। और तीन बातें सामने आती बार बार, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना। और आज तो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है यूनिसेफ की तरफ से, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमने आज ये आप सबको तकलीफ दी। ये प्रोग्राम तो हैंड वॉशिंग डे का प्रोग्राम तो बंद कमरे में भी हो सकता था, एक फॉर्मेलिटी भी हो सकती थी, किसी को मालूम पड़ता ही नहीं, दूसरे दिन अखबार में आता कि कल सरकार ने हैंड वॉशिंग डे मनाया है। अब कैसे मनाया, क्या किया, 100 लोग बैठे थे, 200 लोग बैठे थे, छोड़ दीजिए बात को, एक फॉर्मेलिटी हो जाती। पर हमने कहा कि कोरोना के जो जंग चल रही है उसमें जब राजस्थान सरकार पूरी तरह अपने आप को झोंके हुए हैं पब्लिक के सहयोग से, और मुझे कहते गर्व है कि राजस्थान की जनता ने कोरोना की शुरुआत से ही जिस प्रकार से एक दूसरे की मदद करी, खाना पका हुआ, कच्चा खाने की सामग्री, सरकार ने भी कैश में, काइंड में लाखों लोगों को मदद करी, फ्री अनाज दिए, बाबा साहब और दानदाता, हमारी संस्था, एक्टिविस्ट और पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको कहना है, सबके वर्कर्स। हमने प्यार किया धर्म गुरुओं को, डॉक्टर्स जो अनुभवी थे उनको, तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को बुलाया, बातचीत करी, कोशिश करी कोई राजनीति इसमें नहीं हो। अभी हम चाहते हैं जो अभी जन आंदोलन, जनता का आंदोलन, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर नो मास्क नो एंट्री का अभियान, पहले हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाया था 15 दिन, आपको याद होगा, थोड़ा फर्क पड़ा। फिर हमने डॉक्टर्स को विषय में बुलाया, डॉक्टर नरेश त्रियान वेदांता के मालिक, डॉक्टर शरीन लीवर के एक्सपर्ट, डॉक्टर देवी शेट्टी बेंगलोर से जो हृदयालय के ग्रुप के मालिक है। सबकी राय थी कि अगर आप राजस्थान में 1 महीना कंपल्सरी कर दें, मास्क लगाए हर व्यक्ति, तो 1 महीने बाद में राजस्थान में ग्राफ नीचे आ सकता है। ये तमाम बातें साथ साथ चल रही है। तो हमने देखा कि आज जो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसको भी कम से कम इसी बहाने आप सबसे रूबरू होंगे, बातचीत होगी, 2 बातें समझने का मौका मिलेगा आपस के अंदर। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि प्रोग्राम तो 3 बजे था, पर आज एक छोटा प्रोग्राम है, सुबह प्रोग्राम एक के बाद एक चल रहे हैं। इस कारण से हम लोग इस प्रोग्राम को क्या पोस्टपोन 6 बजे, पर जो एक हमारे आर्थिक विकास समिति का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, वो लंबी चली 2.5 घंटा, तो फिर लेट हो गए, फिर आधा घंटा फिर लेट हो गए, तो आप लोगों को वेट करना पड़ा। गांव में तो कई सरपंच चले भी गए होंगे, कई बैठे होंगे, पर मैं माफी चाहूंगा। पर कहने का मतलब ये है कि ये अभियान का पार्ट है, हाथ धोना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो कृपया करके मैं जो बात मैंने शुरू करी थी कि कई बार चैलेंज जब आता है तो उस चैलेंज को स्वीकार करके उसको अवसर में बदल लेना चाहिए, उसका लाभ कैसे उठाए। बाढ़ आगे तो आ गई, अकाल पड़ गया, अब अकाल में अगर मान लो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सड़कें बन जाती है, रोजगार मिल जाता है, केवल पानी की समस्या के ट्यूबवेल खुद जाते हैं, हैंडपंप खुद जाते हैं। कहने का मतलब कि समस्या आ गई हमारे सामने, अब उसको अपन लेके बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा, तो उसका इलाज तो कर नहीं सरकार। हमारी ड्यूटी है हम कैसे मास्क लगवावें, किस प्रकार दूरी बढ़वावें, सोशल डिस्टेंसिंग, और किस प्रकार से हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करें। और वही एक प्रकार से
अवसर बदलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम ऐसे भी होते हैं कि यूरोप है आज जो विकसित मुल्क है दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कोई जमाने में 100 साल पहले हो सकता है कि वहां भी हाथ धोने का रिवाज पूरा नहीं हो, जो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है वहां भी थूकने का सार्वजनिक स्थान पर चलन हो, वहां पे भी 100-150 साल पहले वहां पे भी कोई ऊपर से नहीं आए हैं, एक इंसान थे वो पहले। धीरे धीरे वो समझते 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 आगे निकल गए और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के आ गए। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस के अंदर सब में इतनी प्रगति कर ली कि वहां की जनता को ज्यादा वो सक्षम हो गए समझाने के अंदर। और वहां भी महामारी आई है, दुनिया में, विश्व में कई महामारी आई है। भारत के अंदर भी स्पेनिश महामारी थी 1918 के अंदर, करीब 100 साल पहले। हजारों लाखों लोग मर गए भारत के अंदर भी। उस वक्त भी जनता जब तक खड़ी नहीं होती तब तक उस महामारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, खाली सरकारें नहीं कर सकती है। पर मैंने जो बात है वो कही कि आज दुनिया के मुल्कों में थूकना महापाप समझते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर हाथ साफ करते हैं आराम से, उनके पास एडवांस कंट्री है तो सैनिटाइजर, साबुन वाबुन, जो टॉयलेट वॉयलेट जो आधुनिक दुनिया है वो तो वहां तो बहुत शानदार तरीके से रहते हैं। तो वो समझते इन बातों का महत्व क्या है। पब्लिक प्लेस में थूकना भी संक्रमण फैलाता है, हाथ भी धोते हैं संक्रमण फैलता है, ये बताया मंत्री जी ने और इन सब के साथियों ने। ये बातें ऐसे वक्त में लोगों की हैबिट में डाली जा सकती है, इसलिए मैंने कहा कि आप जो चैलेंज आया उसको हम ऑप्शन में कैसे बदल दें। हमारे यहाँ भी क्यों नहीं सार्वजनिकता में थूकना बंद कर दें हमेशा के लिए, कोरोना खत्म होने के बाद में भी, क्योंकि संक्रमण तो कई तरह के होते हैं। अभी कोरोना का है, कभी स्वाइन फ्लू का है, कभी हैजा का है, कभी कॉलेरा का है, कभी और कोई हो सकता है। अभी हाथ धोने के बारे में आपको जो बताया गया है बहुत डिटेल में बता दिया आपको, पर 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। डायरिया होता है लोगों को, दस्तें लगती है, बहुत घातक बीमारी वो भी है। हाथ अगर ढंग से नहीं धोए होते हैं तो आप बताइए, प्रकोप जो है हाथ धोने के प्रकोप संबंधित रोगों के संचालन को रोकता है। मतलब डायरिया 48% तक कम हो जाता है अगर आप ढंग से हाथ धो, तो 48% तक डायरिया कम हो जाता है। और लोग समझते नहीं है, अच्छे भी लोग नहीं समझते हैं। हाथ तो धोते हैं, हाथ धोने के तरीके होते हैं। ये हैंड वॉशिंग डे जो है ये पूरा हाथ धोने के तरीकों को बता रहा आपको। अगर कोई आप इंटरेस्ट लेते हो तो हाथ धोने का तरीका भी पूरा होता है, तब जाके वो हाथ धोना माना जाता है। वरना हम गए फटाफट हाथ धोया, हमारा ले साबुन लगाया, धूप के आ गए। एक हाथ कैसे धोए वो अलग ही मामला है ढंग से हाथ धोने का। वो अगर कोई करे तो आपके डायरिया नहीं हो सकता, 48% कम हो जाता है। लंग्स में इंफेक्शन होता है कई बार 20% तक वो कम होने के चांस बन जाते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ खाली जो यूनिसेफ के और कुछ समझ में का, मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ आपको। और क्लाइमेट चेंज होता है, ये जब बरसात का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ रहा, मौसम बदलते बीमारियां होती फैल, उसमें भी अगर आप हाथ धोने की स्वच्छता कर रखें आपकी भागीदारी हो सकती है। तो कहने का मतलब बातें बहुत छोटी है, पर ये मौका आपके लिए है कि आपको मैं कहना चाहूंगा कि कई प्रॉब्लम भी है, पानी की कमी भी है। कुछ समझ कह रही थी कि पानी है देश में, राजस्थान के अंदर देश का 10% भूभाग है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया देश में, मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े होने के बाद में। परंतु आज पानी की कमी है, सब कुछ है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना पानी को हाथ धोने का तरीका सीख जाए तो कम पानी में काम चलाएं। पर ये तमाम बातें आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपसे सबसे अपील करूंगा, कृपा करके आप जो बातें कही जा रही है उसको आप कृपा करके समझने का प्रयास करें। और खाली मेरे या मंत्री जी के या कुछ साथियों के काम नहीं चलेगा जब तक जनता खुद उठ खड़ी नहीं होगी। सारी संस्थाएं, सारे एनजीओ, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, अभी हमने जो जंग छेड़ी है उसके अंदर
हमने कहा है कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है ये जन आंदोलन, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हम खुद कह रहे हैं हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। हम चाहते हैं कि सरकार की ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से, पूरी मशीनरी के सहयोग से हम चाहते हैं कि अपनी जंग को जीतें और किस प्रकार अंकुश लगा सकें उसमें हम लोग भागीदार बने। सरकार ने शुरू से कमी नहीं रखी है। मैंने कहा आपको कैश काइंड डिस्ट्रीब्यूट करने में केंद्र सरकार ने कहा 50 लाख रुपए देंगे हम जो हेल्थ वॉरियर्स है उनको। तो राजस्थान वो राज्य जिसने कहा कि हम हेल्थ वॉरियर के अलावा जितने ही लाखों कर्मचारी है राजस्थान के अंदर, छोटा बड़ा, संविदा कर्मी है और क्या कहते हैं सफाई कर्मी, संविदा कर्मी, टेम्परेरी कोई भी है, अगर वो कोरोना में काम कर रहा है उसकी डेथ होती है तो हम भी 50 लाख देंगे उस लोग व्यक्ति को भी, चाहे वो छोटा कर्मचारी भी क्यों नहीं हो। पूरे देश के अंदर एक बात राजस्थान जिसने एक फैसला किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उदाहरण दे रहा हूँ। इस प्रकार से कई फैसले हमने किए, अभी तक कर रहे, लगातार रोज मीटिंग हो रही है हमारी। और सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारी यही है कोरोना पे कंट्रोल कैसे करें, किस प्रकार हम लोगों को हेल्थ सेक्टर मैंने कहा आपको काम चल रहा है। दूसरा सेक्टर वो है उसमें सरकार के अस्पताल कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको हमको आगे आना पड़ेगा संदेश के लिए। हमारे मंत्रियों के साथ एक साथ निकले जयपुर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर और मास्क बांट के आए, सिंबॉलिक लोगों लगे मास्क का कितना महत्व है। 1 करोड़ मास्क हम बांट रहे हैं और जो और बांटेंगे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम बांट रहे अलग से, संस्था बांट रही है, जो भी बांटना चाहे बांटे। इस प्रकार हम सब मिलकर के कैसे कोरोना का मुकाबला करें। ये इस मुबारक मौके पर जब ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और यूनिसेफ चला रहा है। यूनिसेफ का अपना एक अलग हो रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। यूनिसेफ जिस प्रकार बच्चों के लिए काम कर रहा है और जिस प्रकार यूनिसेफ की जो इकाइयां काम करती है वो तारीफ काबिल है। सरकार को साथ सहयोग करती है गाँव के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अमित साहब छोड़ी है यूनिसेफ ने हमारे मुल्क के अंदर भी अपनी एक्टिविटी से, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उनके प्रतिनिधि बैठे हुए यहाँ पर, उनको मेरा बहुत बहुत, श्रीमती इजाबेल बारदम, राज्य प्रतिनिधि यूनिसेफ, और तुम्हारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा आह्वान है, प्लीज कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, कोरोना की जंग में आप लोग अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव पंचायती राज विभाग से आग्रह करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, राज्य प्रतिनिधि यूनिसेफ श्रीमती इजाबेल बारदम जी, समस्त अधिकारीगण तथा जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों को इस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे समारोह में भाग लेने पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।